وہ پاک سرزمین کی طرف دوسری بار ہجرت کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اس کے سابق کانگریسی پروفیسر نے صحیح و عمل کی ایک نئی دنیا اس کے سامنے واقع کر دی۔ لبیک اللہم لبیک کی فلک شگاف صدائیں تھم چکی تھیں، کیونکہ لاکھوں حجاج کرام حج کے سب سے اہم فریضے وقوف سے فارغ ہو چکے تھے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ چکے تھے اور اب ہر ایک کو شب بھر کے قیام کے لیے مزدلفہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو معلم کے لگائے ہوئے بڑے شامیانے تلے دوسری خواتین کے ساتھ دعاؤں اور مناجاتوں میں مصروف چھوڑا اور تازہ ہوا کھانے اور یہ دیکھنے کے لیے باہر نکل کر اپنے گروپ کیمپ کی طرف چلا کہ معلم کی گاڑیاں ہمیں لینے آ گئی ہیں یا نہیں۔ دروازے کے قریب سڑک کی دوسری جانب اپنی عمر کے اس شخص کو کھڑے دیکھا تو میرے منہ سے بے ساختگی میں نکلا، نشان پاکستان انور۔ میں لپک کر اس کے پاس گیا۔ وہ نشان بائیں گال پر کان سے ناک کے وسط تک 4 انچ کے گھاؤ کا تھا، جو 40 برس بعد بھی مجھے یقین دلا رہا تھا کہ تمہارا ہائی سکول اور کالج کا دوست محمد انور تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ محمد انور، میں نے یقین ہونے کے باوجود سوال کر ڈالا۔ جی ہاں، مگر آپ؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا میں نے اپنا نام اور پرانا حوالہ دیا تو ہم دونوں کے احراموں سے نصف ڈھکے ہوئے بدن ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میرے اور شاید اس کے بھی ذہن میں 40 برس پہلے کے منظر گھومنے لگے۔ پھر جلد ہی دونوں کو یاد آ گیا کہ ہمیں تو اپنی شریک حیات کو لے کر مزدلفہ جانا ہے۔ گاڑیاں ہمارے کیمپوں کے صدر دروازوں پر پہنچ گئی تھیں۔ انور کا کیمپ ہمارے مقابل سڑک ہی پر تھا۔ ہم نے طے کیا کہ مزدلفہ اور منا کے مناسک پورے ہو جائیں تو جتنے دن مدینہ منورہ کو روانگی کے انتظار میں یہاں ٹھہرنا پڑے گا، ان کے دوران خوب ملاقات اور تفصیلی باتیں کریں گے۔ دونوں نے اپنی قیام گاہوں کے پتے ایک دوسرے کو سمجھا دیے۔ محمد انور 4تھی جماعت سے کالج میں کام کا امتحان دینے تک میرا بڑا قریبی دوست رہا تھا۔ اسکول میں ساتھ ڈیسک تھے، کھیل کود لڑائی بڑائی میں بھی ہر وقت ایک دوسرے کے حمایتی۔ مضامین بھی ایک، شرارتیں، مہم جوئیاں اور اچھے برے تجربات بھی مشترک۔ 1945 سے 1947 تک کالج کے وہ 2 سال برصغیر کی سیاسی تاریخ کا نقطہ عروج تھے۔ ہم دونوں باقی تمام باتوں میں ذوق و ہم آہنگ تھے، لیکن سیاسی نظریات میں کچھ اختلافات رکھتے تھے۔ کچھ عرصہ مجھ پر ہندو ہم جماعتوں سے زیادہ تر نیشنلسٹ مسلمان لڑکوں کے خیالات کا اثر رہا تھا، اور میں برٹش انڈیا کے بٹوارے کے مطالبے سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس میرا جگری دوست انور لفظ پاکستان کے ایک حرف پر فدا تھا۔ کالج میں ہم لوگ ہندو، مسلمان، سکھ جب سیاسی بحث و مباحثہ کرتے تو تہذیب اور شائستگی کے دائرے سے باہر نہ نکلتے۔ سیاست کے موضوع سے تھک جاتے تو پھر اچھے دوستوں کی طرح ہنسی مذاق اور تفریحی مشاغل اختیار کر لیتے۔ مگر بدقسمتی سے ایک دن ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ایک بڑا سرکاری افسر جو سکھ تھا تبادلے کے سبب ہمارے شہر میں تعینات ہوا۔ اس کا ایک بیٹا اکتوبر 1946 میں داخلہ لے کر ہمارے ساتھ کام 2nd ایئر میں شریک ہوا۔ اس پر تصور پاکستان کے کٹر مخالف سکھ سیاست کار ماسٹر تارا سنگھ کی پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف بد زبانی اور دریدہ ذہنی کا شدید اثر تھا۔ وہ سیاسی بحث میں آداب محفل اکثر نظر انداز کر دیتا، جسے ہم نووارد سمجھ کر معاف کر دیتے، لیکن ایک دن اس متعصب لڑکے نے حد سے تجاوز کر کے پاکستان اور قائد اعظم کی شان میں مغلظ اور نازیبا الفاظ استعمال کیے تو محمد انور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ دیگر لڑکے انہیں چھڑانے کی کوشش میں تھے کہ موقع پا کر سکھ ہم جماعت نے جیب سے بڑے پھل والا چاقو نکالا اور محمد انور کے پیٹ میں گھونپنے کے لیے آگے بڑھا۔ انور بھی خاصا جاندار تھا۔ اس نے حملہ روک لیا۔
मगर हरीफ ने उसकी गर्दन पर वार करना चाहा तो वो पड़ा उसके बाएं गाल पर। यही वो गहरा जख्म था जिसे हमने मजाक में पाकिस्तान का निशान कहना शुरू कर दिया था, ये न जानते हुए कि आगे चलकर निशान पाकिस्तान एक बड़ा शहरी एजाज कहलाएगा। बड़े अफसर का असर रसूख, कॉलेज के नेक दिल बंगाली हिंदू प्रिंसिपल की दानाई, हम जमातों के मशवरे, ये सब काम दे गए। बात कॉलेज से बाहर निकली ना आगे बढ़ी, बल्कि चंद रोज बाद मोहम्मद अनवर और उस सिख लड़के में सुलह सफाई हो गई। फिर पाकिस्तान बन गया। मैं अपने खानदान के साथ पाक वतन में आकर बस गया। पिछला दौर, पिछली बातें, पिछले दोस्त सब एक एक करके भूलते गए और आज यहाँ मैदान इरफात में 40 बरस बाद अनवर के मिलने से हज की खुशी में इजाफा हो गया। मक्का मुअज़्ज़मा में क़याम के दौरान जब भी फरागत का थोड़ा सा वक्त मिलता, हम आपस में बातचीत कर लेते। पहले उसके इसरार पर मैंने कॉलेज के बाद की अपनी दास्तान हयात सुनाई। वो ये जानकर खुश हुआ कि मैं अपने आबाई वतन लाहौर आकर किसी परेशानी का शिकार हुआ, ना मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने बताया कि इन 40 बरसों में वतन से बाहर बहुत से मुल्कों की सैर की। कुछ अरसा यहाँ सऊदी ममलिकत में मुलाजमत करके रिज़्क भी कमाया और ये कि 37 बरस बाद मैं दोबारा हज की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस दौरान इस दिन ज्यादा गुफ्तगू के लिए वक्त नहीं था, सो उसकी कहानी, उसकी ज़बानी सुनने के लिए दूसरी मुलाकात तय पा गई। और उस रोज वो था भी बड़े अच्छे मूड में। बेचारा कोशिश बस्यार के बावजूद अभी तक दौरान तवाफ हिजर असवद को चूम नहीं सका था, क्योंकि बैतुल्लाह के गिर्द हमा वक्त खलकत का इज्तिहाम रहता था और हट्टे कट्टे हाजी उस मुकद्दस पत्थर पर हर वक्त यलगार किए रहते थे। इस रोज नमाज फजर का सलाम फेरते ही अनवर बकौल खुद भागा और तवाफ शुरू किए बगैर उस सादत से जी भर कर सैर हो गया। ये अच्छी खबर सुनकर हम दोनों हरम कहबा के नजदीक एक पाकिस्तानी मुतम में जा बैठे और चाय की चुस्कियों के साथ मोहम्मद अनवर ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। ज़ोहर की नमाज में खासी देर थी, इसलिए हम दोनों इत्मीनान से बैठकर बातें करते रहे। मोहम्मद अनवर, जो 1947 में पाकिस्तान पर दिलो जान से फिदा था, अभी तक भारतीय और भारत का पाबंद कानून शहरी था। मैंने हैरानी का इजहार किया कि ऐसा क्यों। उसने बताया कि बंटवारे के फौरन बाद मेरे बड़े छोटे बहन भाई हमारे एक ताया के साथ कराची हिजरत कर गए और आज भी अपने अपने कुंबों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। मेरे वालिद शहर का छोटा सा जाती मकान और करीबी मौजा में एक बेगा ज़राई ज़मीन बेचकर कराची जाने का इरादा रखते थे। मैं चूँकि बीकॉम का तीसरा साल शुरू कर चुका था, इसलिए चाहता था कि अब कॉमर्स ग्रेजुएट की डिग्री लेकर ही पाकिस्तान जाऊं, ताकि नए और पाक वतन में जाकर अच्छी मुलाजमत मिल जाए। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। वालिद साहब मकान और ज़मीन बेचने से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए और माँ जी ने मियाँ मरहूम की कब्र से इतना प्यार बढ़ाया कि बहन भाइयों, अजीज़ों, हत्ता कि मेरे कहने पर भी हिजरत पर रजामंद न हुई। मैंने भी काम कर लिया तो माँ से पूछा कि अब चलोगी, लेकिन वो ना मानी। ये सआदत शायद मेरे नसीब में लिखी थी कि पहले बाप को फिर माँ को कांता देकर उनकी आखिरी मंजिल तक पहुँचाया। अनवर ने बताया कि मैंने 1949 में भी काम किया था और मुलाजमत की तलाश में निकल पड़ा था। छोटे बड़े और हिंदू सिख शरणार्थियों की वजह से मुकाबला सख्त था। कभी किसी बैंक या इदारे में छोटी मोटी नौकरी कर ली, कुछ पैसे जमीन से आ जाते। इन दिनों भी पाकिस्तान से वालहाना उल्फत थी। दिल में हौक सी उठती कि जिस इस्लामी देश की मोहब्बत का निशान मैं चेहरे पर सजाए फिरता हूँ, उसकी फिजाओं में सांस लेने की ख्वाहिश नसीबी से अभी तक महरूम हूँ। बहरहाल माँ हर तरह में मुकद्दम थी और जब 1952 में उसका साया मेरे सर से उठ गया तो मैंने जल्द ही आबाई मकान में ताला लगाया और पाकिस्तान पहुँच गया। यहाँ तक पहुंचकर अनवर का और किसी गहरी सोच में डूब गया।
अनवर रुका और किसी गहरी सोच में डूब गया। मैंने कहा, क्या बात है, किन ख्यालों में खो गए? वो कहने लगा, छोड़ो यार, उससे आगे की बातें कहीं तुम्हें ठेस न पहुंचा दें। बस ये समझ लो कि मैं अभी तक भारतीय हूँ और उस बात पर काने मुतमईन हूँ। मैंने बहुत इसरार किया, लेकिन वो मजीद बात करने पर राजी न हुआ। ताहम वादा किया कि अगली बैठक में बाकी अहवाल बताएगा। हम दोनों खुशकिस्मत थे कि मदीना मुनव्वरा में एक ही दिन पहुंचे, गो अलग अलग बसों में। फिर हमारी मुलाकातें और बातें रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में होती रहीं। एक रूह परवर शाम, जब हम सुनहरी जालियों के करीब उनकी कुरब की लज़्ज़त आगाही सआदतें हासिल करके मस्जिद नबवी से बाहर आए तो ख़वातीन सामने की दुकान में शॉपिंग करने चली गईं और मैंने अनवर के साथ मिलकर चाय से भरा थर्मास खाली करना शुरू कर दिया। तब उसने वादे के मुताबिक अपना बकिया किस्सा सुनाया। उसका बयान कुछ यूं था। मैं 1952 में पाकिस्तान गया तो वहां सड़कों पर हाय आटा के जलूस निकलते देखकर दिल बहुत दुखी हुआ। बंटवारे से पहले हम कहा करते थे कि पंजाब का सूबा हिंदुस्तान की ब्रेड बास्केट यानी रोटियों की चंगेर है, जो अनाज उगाकर सारे मुल्क का पेट भरता है। अब बेशक पूरा पंजाब नहीं, मगर आधे से ज्यादा तो है। फिर भी एक छोटे मुल्क में हाय आटा का शोर क्यों? मैं ये सोचकर उदास हो जाता। अब तक भारत में रहकर अपने सपनों के देश नौज़ायदा इस्लामी ममलिकत के बारे में जो नागवार बातें सुनी थीं, हालात यहाँ आकर देखे तो कहीं ज्यादा खराब थे। हर तरफ आपाधापी लूट खसूट मची हुई थी। मैं सोचा करता, वहाँ इज्जत में अहले इक़्तिदार नाम तो राम और कृष्ण जैसी पाकीज़ा किरदार वाली हस्तियों का लेते हैं, लेकिन हुक्मरानी चांकिया और मैगिया दिल्ली के बताए हुए गुरुओं के मुताबिक करते हैं। मगर यहाँ का नक्शा कौन सा मुख्तलिफ है। अल्लाह और रसूल का नाम सभी लेते हैं, लेकिन अमल उनकी मुखालफत सिमत में किए जा रहे हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? बुजुर्गों ने समझाया कि बरखुरदार भूल जाओ अपने आदर्शों को। जिस यूटोपिया का तुम ख्वाब देखा करते थे उसका कोई वजूद नहीं। बस हकीकतों से समझौता करो। बीकॉम की डिग्री लेकर घूमो और मुलाजमत ढूंढो। कोई पैदा वाली जगह मिल गई तो समझो पोहारा। मैंने हथियार डाल दिए, मगर माज इस हद तक कि चाहे आगे खारदार झाड़ियां हैं, कांटों से बचकर चलने की पॉलिसी पर अमल करूंगा। मुझे एक बड़े इदारे के अकाउंट सेक्शन में मुलाजमत मिल गई, वो भी इसलिए कि मेरा तायाजाद भाई, जो मेरा बहनोई भी था, उस इदारे का डायरेक्टर था। फिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। जिस चैलेंज का मुकाबला करने की नीयत बांधी थी, पहले ही मौके पर सामने आ गया। यहाँ बिल पास करने और उनकी अदायगी तक हर मरहले में ठेकेदारों से रिश्वत ली जाती थी, और मुझे चंद रोज ही में पता चल गया कि रिश्वत की रकमें नीचे से ऊपर तक दर्जा बदर्जा तकसीम होती हैं और सरबराह इदारा यानी मेरे बहनोई साहब को शेयर का हिस्सा पहुंच जाता है। अब मुझे कोई तज्जुब नहीं था कि तकसीम से पहले ताया जी के ये साहबजादे, जो एक मामूली से मकान में रहते थे, यहाँ शहर के पोश इलाके में इतनी आलीशान कोठी के मालिक क्यों कर बन गए हैं। पहला महीना पूरा होने पर जब रिश्वत का हिसाब किताब होने लगा तो 300 रुपए माहवार तनख्वाह पाने वाले इस गुनहगार की मेज पर सुपरिटेंडेंट साहब 500 रुपए पैदा के रख गए। मैंने एहतजाज किया और रकम लौटाना चाहिए तो पोते पोतियों वाले वो साहब कहने लगे, मियाँ इतने पारसा ना बनो, चंद महीने और नोटों की खुशबू सूंघोगे तो सारी पारसाई निकल जाएगी। रिश्वत घर नहीं ले जाना चाहते तो किसी दरगाह की संदूकची में डाल देना। हम अजाब कमाते हैं, तुम सवाब कमा लेना। अनवर यहीं तक पहुंचा था कि हमारी बीवियां हाथों में शॉपिंग बैग पकड़े लौट आईं। उसी लम्हे मस्जिद नबवी के मुअज्जिन की मस्ती अजान ने हमें बेखुद कर दिया। लोग दीवानावार नमाज इशा के लिए चारों सिमतों से लपके आ रहे थे। नमाज के बाद ख़वातीन के साथ एक पाकिस्तानी मुतम में बैठकर खाना खाया, फिर उन्हें घर भेज दिया कि मैं आज अनवर से बाकी दास्तान सुनना चाहता था। फिर वही गर्म चाय और मेरे दोस्त का किस्सा।
انور بتانے لگا کہ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے بہترا کہا کہ آپ لوگ میرے حصے کی رقم آپس میں بانٹ لیں تو اس کا جواب تھا نہیں، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہر ایک کا جائز حصہ اسے ملتا ہے، چاہے رکھے چاہے یا نالی میں پھینک دے۔ غرض وہ 6-7 ماہ میرے لیے بڑے کربناک تھے۔ میں مجبور ہو کر اپنے حصے کی رشوت کی رقم پکڑ لیتا اور کبھی کسی خیراتی ادارے اور کبھی کسی ہسپتال کے عطیہ باکس میں چپکے سے ڈال آتا۔ ایک اور مشکل یہ تھی کہ میرے بہنوئی ہی مجھ سے ناراض نہیں تھے بلکہ سکی بہن تک نے سیدھے منہ بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ دونوں کو یہ شکایت تھی کہ میں بڑا نیک پاک بنا ہوا تھا، دفتر میں الٹی سیدھے باتیں کرتا رہتا تھا، اور آگے جو کچھ ہوا اس نے میرا دل پاش پاش کر دیا۔ میں اب تک حسن گمان رکھتا تھا کہ اس ادارے میں رشوت ضرور لیتے ہیں لیکن ٹھیکیدار سے کام اور سامان ٹھوک بجا کر لیا جاتا ہوگا، مگر جب گہرائی میں اتر کر جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 5 روپے کی چیز کے 10 روپے ادا کیے جا رہے ہیں۔ سامان غیر معیاری ہو تو بھی قبول کر دیا جاتا ہے، کام ناقص ہو وہ بھی اوکے ہو جاتا ہے۔ میرے اضطراب کی انتہا نہ رہی۔ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک لمبی چھٹی ادارے کے سب سے بڑے افسر یعنی پروجیکٹ ڈائریکٹر کو لکھ دی اور ادارے والوں کا کچا چٹھا کھول دیا۔ اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ ضرور کوئی کارروائی ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ چند ہی دنوں میں بہنوئی اور بہن نے اپنے گھر آنے کی ممانعت کر دی۔ دوسرے قریبی اور دور کے سب رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا۔ مجھے ایک کلرک کی زبانی علم ہوا کہ بڑے افسر نے ایکشن لینے کی بجائے میرے بہنوئی سے کہا کہ یہ کون گدھا ہے تمہارے محکمے میں، نکالو اسے۔ اور پھر میرے بہنوئی کے ایما پر پولیس والے کرائے کے میرے چھوٹے سے کمرے میں آدم کے کہنے لگے کہ ہمیں شک ہے تمہاری سرگرمیاں خلاف پاکستان ہیں۔ میں نے گال کا نشان دکھایا اور اسے کا پس منظر بتا کر کہا کہ یہ ہے پاکستان سے میری محبت کا نشان، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جھگڑالو اور غنڈہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ میں صفائی پیش کرتا رہا، وہ لوگ میرے کمرے کی چیزیں اتھل پتھل کرتے رہے۔ میری شامت اعمال کے چھوٹی سی میز پر انہیں بھارت کے پتے والے 2 لفافے مل گئے جنہیں ٹکٹیں لگا کر ابھی پوسٹ کرنا تھا۔ مزید ستم یہ تھا کہ ایک لفافے کا مکتوب الہ ہندو تھا۔ انہوں نے بڑی ڈٹائی سے پھوپھا کے نام والا خط کھول ڈالا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط میں سغرا کا بھی ذکر تھا جو میری پھوپھی ذات مجھ سے منسوب اور میرے خوابوں میں بسنے والی تھی۔ پاکستان جاننے لگا تو پھوپھی نے کہا تھا کہ اپنی امانت 4 کلمے پڑھوا کر ساتھ لے جاؤ، مگر میں پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ سو وہ ابھی تک وہیں بھارت میں تھی اور میرے آئے دن کے خطوط دراصل اسی کے نام ہوتے تھے۔ پولیس والے بڑی مشکل سے میری وضاحتوں کو مانے، مگر جب دوسرا لفافہ کھولا تو مجھے گھسنا شروع کر دیا۔ خط ہندی میں تھا جو میں اچھی طرح سیکھا ہوا تھا۔ ان سے خط کیا پڑھا جانا تھا وہ مجھے اور خط دونوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ وہاں کون تھا جو ہندی تحریر پڑھتا؟ ادھر ادھر آدمی دوڑائے گئے۔ آخر کار ریڈیو پاکستان کے ایک بزرگوار آئے اور فر فر میرا خط پڑھنے لگے۔ دراصل کالج کے دور میں ایک ہندو میرا مخلص دوست بن گیا۔ میں پاکستان آ کر کبھی کبھار اسے خیر و عافیت لکھ دیتا تھا اور بجائے اردو یا انگریزی کے مذاقن ہندی میں لکھتا تھا۔ اس خط میں کچھ اس قسم کے فکرے سن کر کہ ابھی صحیح جگہ نہیں ملی، مناسب لوگ نہیں ملے، پولیس والوں نے مجھے بھارتی جاسوس ہی سمجھ لیا تھا، لیکن شکر ہے انہوں نے فی الحال کوئی سخت قدم اٹھانے سے پہلے محض کڑی نگرانی رکھی جائے کی ہدایت پر مجھے چھوڑ دیا۔ مگر میرا خط مزید تفتیش کے لیے رکھ لیا۔ مجھ پر انتہائی سخت ایام سایہ فگن ہو گئے۔ نوکری سے جواب، تھانے میں روزانہ رپورٹ کرنے کی پابندی، اپنوں کی مکمل بے اعتنائی۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں ایک بڑی درگاہ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک عجب تماشا دیکھا۔ خلقت خدا کا ہجوم، اس لیے کہ ملک کی ایک مشہور فلم اسٹار ایک فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر کے ہمراہ درگاہ شریف پر دیگیں چڑھانے آئی ہوئی تھی۔
कि फिल्म की शूटिंग शुरू करते वक्त यानी मुहूर्त से पहले वो और उसका साथी दरगाह में जो दुआ मांग कर गए थे वो कबूल हो गई और फिल्म सुपरहिट हुई थी। मुझे ये मंजर देखकर अजीब सी घिन महसूस हुई, यानी हदायत पाने के बजाय अब सूफियाए कराम से उरियान रक्सों और मुनाजिर फिल्मों की कामयाबी के लिए अल्लाह पाक के हजूर सिफारिशें कराई जा रही हैं। मैं सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता तो था ही, उस शिर्क को देखकर सीधा मस्जिद में पहुंचा और सजदे में गिरकर रोने लगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी ये कैफियत कितनी देर रही, इतना जानता हूँ कि दो मेहरबान निगाहें मुझे प्यार से देख रही थीं। वो पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम व दानिश्वर थे। नमाज बाजमात के बाद मुझे अपने घर ले गए। मेरी परेशानी का हाल सुनकर वो बोले कि जहाँ तक तुम्हारी जाती मुश्किलात का ताल्लुक है तो याद रखो, खुशियों गम नशेब व फराज और मुकाबलों की पट्टी से गुजरकर ही आदमी कुंदन बनता है। रही तुम्हारी नाउमीदी, मायूसी और शिकवे के तुम्हारा पाकिस्तान तुम्हारे ख्वाबों और तसव्वुरात के ऐन मुताबिक क्यों नहीं निकला, तो अजीजम ये तो सोचो कि ये मस्जिद है तो सही, अगर आज उसके ज़ेरे साया खराबात हैं तो कल इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह के बंदे नमाजें भी पढ़ने लगेंगे। खराबात की वजह से मस्जिद के वजूद से मुतनफ़र नहीं होना चाहिए। आज उस साहिबान के नीचे बुराइयां परवान चढ़ रही हैं तो कल यहाँ नेकियां भी हो सकती हैं, मगर साहिबान तो हर हाल में सर पर रहना चाहिए। वो 2 घंटों का साथ उस दानश्वर का मेरे ख्यालात पर हावी कनूतियत की सारी मैल धो गया और रुजाइयत के दर्स दे गया। हाँ, मैं उन बुजुर्गवार से मुतफिक हो गया कि पाकिस्तान सलामत रहे, कायम व दायम रहे। मकीन अच्छे हैं या बुरे, मकान को गुज़ंत से बचने की सरतोड़ कोशिश करते रहना चाहिए। मैंने हकीकतों के साथ नवुर्द आज़मा होने का फैसला कर लिया। मुलाजमत के लिए आज सरे नौ कोशिश शुरू कर दी। 2 माह बाद पुलिस वालों की तफ्तीश ने मुझे बेज़रर करार दे दिया। मेरी जान छूट गई, लेकिन हकायक से लड़ा जा सकता है, तकदीर से नहीं। 6-7 माह कुछ तिजारती फर्मों में जो वक्ती हिसाब और खातों का काम करके पेट पालता रहा। अच्छी मुलाजमत मिलने की उम्मीद हो गई थी कि भारत से सुगरा का खत मिला। फूफी जान मेरे वालिद की इकलौती और चहेती बहन का सुहाग उजड़ गया। फूफा के महल्ले बाड़ा हिंदू राव में बलवाई पहुंच गए। उनका एक नेक दिल हिंदू दोस्त बलवाइयों से पहले आकर फूफी सुगरा और दूसरे छोटे बच्चों को ले गया और अपने घर में हालात ठीक होने तक पनाह दे दी। वो बरसों के जिगरी दोस्त को तलाश करता रहा, मगर फूफा जो हमले के वक्त घर से बाहर थे, बलवाइयों के हाथों शहीद हो गए। सुगरा का खत पाकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यहाँ पाकिस्तान में अजीजों ने खबर सुनकर किसी सदमे का इजहार न किया। रुपए की रेल पैल ने जज्बे सर्द कर दिए थे और एहसासात मुंजमद। मुझसे न रहा गया। सुगरा ही फूफा की औलाद में सबसे बड़ी थी। फूफी भारत में अकेली रह गई हैं और सुगरा को भी सहारा दरकार है। तो क्या मैं यहाँ बैठा रहूँ, इन लोगों को बेसहारा छोड़ दूँ, सुगरा को भूल जाऊँ? उन सब सवालों का मैंने एक ही जवाब दिया। इन दिनों अभी सिंध राजस्थान के रास्ते लोग बिला रोक टोक आ जा रहे थे। चुनांचे मैं दिल्ली पहुँच गया। पता चला कि हमारा छोटा सा आबाई मकान मतरूका अमलाक वालों ने हथिया लिया है। 1 बीघा जमीन पर वही चमार काबिज हो गए हैं, जो उस पर मौसमों के मुताबिक साग सब्जियां उगाकर कुछ रकम हमें पहुंचा जाते थे। मैंने वापस उस शहर में जाना मुनासिब न समझा। दिल्ली में हालात नॉर्मल हो गए तो सुगरा से निकाह पढ़वा लिया। वही सुगरा जो उस वक्त तुम्हारी बेगम के पास बैठी गप्पे लगा रही होगी। फिर बड़े दिनों तक मेरे और फूफी जान के दरमियान कशमकश जारी रही। मैं चाहता था कि ससुराल वालों को लेकर पाकिस्तान चला जाऊं, हालांकि ये अब खासा मुश्किल काम था, क्योंकि बिला रोक टोक सरहदें अबूर करना अब मुमकिन नहीं था। फूफी कहती कि तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी, मेरी बेटी के मजाजी खुदा हो। तुम्हारे फूफा का दिल्ली की कुतुब रोड पर सूत धागे का अच्छा खासा नफा बख्श कारोबार है, तुम उसे संभाल लो। मैं शायद आखिरकार इनकार कर देता, मगर उन्हीं दिनों याद है ना,
कमर्शियल जियोग्राफी के प्रोफेसर शफकतुल्लाह खान, वही कट्टर कांग्रेसी गांधी भगत, वो 2 बरसे कांग्रेसी नेशनलिस्ट मुसलमानों के गढ़ जामिया मिलिया दिल्ली में पढ़ा रहे थे। वही प्रोफेसर साहब मुझे मिल गए। बातें हुई तो पता चला कि 2 कौमी नजरिए की मुखालफत से न सिर्फ ताइब हो चुके हैं बल्कि इस बात के भी कायल हो गए हैं कि पाकिस्तान न बनता तो इस जोग्राफियाई खित्ते में बसने वाले मुसलमान भी भारतीय मुसलमानों की तरह खारोज बूहाल होते। और आज भारत के मुसलमानों को जो भी तकवीयत पहुंचती है वो पाकिस्तान की मजबूती और तरक्की ही से पहुंचती है। बज़ाहिर मुझे जल्द अज जल्द पाकिस्तान लौट जाने का जवाज़ उस साबिक कांग्रेसी मुसलमान आलिम की बातों से मिल रहा था, मगर मैंने उस वक्त भारत ही में रह जाने का फैसला कर दिया जब उन्होंने मेरी सारी कथा सुनकर ये कहा, मोहम्मद अनवर, मुझे पिछले दिनों भारतीय पंजाब के दौरे में बेशुमार छोटी बड़ी मस्जिदें बदकदे बनी हुई या टूटे मीनारों और शिकस्ता पारों के साथ अपनी बेसरो सामानी और बेहुरमती का नोहा पड़ती नजर आई। सोचो, अगर भारतीय पंजाब के मानंद पूरे भारत के मुसलमान यहाँ से कूच कर गए तो दिल्ली की जामिया मस्जिद, बनारस और मथुरा की आलमगीरी मस्जिदों और फैज आबाद की बाबरी मस्जिद का क्या हशर होगा। इसलिए पाकिस्तान को अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर पाकिस्तानियों पर छोड़ दो। आओ तुम, मैं और 12 करोड़ भारतीय मुसलमान यहाँ इस कुफरिस्तान में एक नया पाकिस्तान बनाएं। नारों से नहीं, उसने तदब्बुर और इस्लामी इखलाक से। जद्दा से बम्बई की फ्लाइट पर सवार होते वक्त मोहम्मद अनवर और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। उसके गाल का निशान एक नए पाकिस्तान का निशान लग रहा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।